Very warm greetings to all my viewers. Wishing all of you a very happy Republic Day. Today, I'm going to talk about a topic which is talked by many experts on YouTube. So, why am I making this video? Which is something which is already talked by many experts. The reason I'm making this video is that when I started trading this particular concept, CPR, and to give credit, I learned, or first time I heard seriously from Mr. KGS, who is a trader. तो उनका इंडिकेटर भी मैं यूज करता हूँ. I have a lot of gratitude, so a lot of credit goes to KGS. He had read it in a book, etc. I have not read that particular book by Frank Ochoa. I have learned it from him, and then of course I have watched videos from many other experts. The reason I'm making this is when I started trading based on CPR, I used to get bogged down in various rules. There were many rules, right? From the opening range, what happens if it is a continuation versus reversal, or things around native candle, alien candle, where should I book, how much profit, etc., etc. So there were many rules. And when I started trading, I got bogged down in many of those rules. But as I gained experience, मुझे लगा कि ये तो बहुत ही कॉमन सेंसिकल अप्रोच है. बिल्कुल अगर मैं कॉमन सेंस अप्लाई करूं तो मुझे रूल्स को मेमोराइज करने की कोई जरूरत ही नहीं है. एंड दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग अ वीडियो वेयर आई एम गोइंग टू टॉक वेरी प्रैक्टिकल, इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे, कि सीपीआर जो है दैट इज वेरी लॉजिकल. एंड एज अ ट्रेडर वी शुड नॉट गेट लॉस्ट इन रूल्स. सो दैट्स द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. Now, before I start, the usual disclaimer, this is for learning purpose. I am not giving any recommendation. And even if you think I'm giving, please don't follow that. Okay. With that disclaimer, let's start. So what is CPR? So when I look at CPR, CPR, of course, has three lines. As you can see it in my slide, you see that there is a pivot, which is like a standard pivot. In this case, it is called the central pivot, क्योंकि उसके ऊपर भी एक line होती है, and there is a line below it. So there is a top central pivot and bottom central pivot. So if I look at CPR, there are three data points. Then along with that, we look at support and resistance. So for the support also, we look at three levels of support or four levels of support. I normally look at three levels of support: S1, S2, S3. And similarly for the resistance, we look at three levels of resistance: R1, R2, R3. So three data points for CPR, three for support, three for resistance. That makes it 9 data points. In addition, we look at the previous period high or low. So if I'm trading intraday, I put the daily CPR. So in that case, I look at the previous day high, previous day low. So these are the 11 important data points which we are looking at it. Now, what are these 11 data points? You don't have to worry about the formula, etc. Just apply common sense. These are the points from where price reacts. और मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा. कभी कभी तो लगता है बिल्कुल मैजिकल है कि प्राइस बिल्कुल वहीं से रिएक्ट कर रहा. आप ये देखिए, मैंने ये डायग्राम डाला हुआ है. If you can see my cursor, the particular candle at almost 11 a.m. on this day has taken support from S2 and it has reversed. तो कभी कभी तो लगता है बिल्कुल मैजिकल है. और मैं पर्सनली स्पॉट चार्ट पे देखता हूँ. बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं फ्यूचर चार्ट पे है, तो आप दोनों पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि आपको क्या पसंद है, स्पॉट चार्ट पे या फ्यूचर चार्ट पे. मैं स्पॉट चार्ट पे देखता हूँ, और इंट्राडे में मैं 3 मिनट और 5 मिनट दोनों देखता हूँ. तो उसके बारे में बात करते हैं. सो द की थिंग हियर इज दैट these 11 data points are confirm for that particular period जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं. तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बाद में बात करूंगा. बट यू जस्ट थिंक that unlike moving average, super trend, RSI, or many other indicators, the value of these 11 data points don't keep on changing during our trading time frame. Okay, and that trading time frame, I'll talk about it. But this is a past data point, and it is like a memory which continues and does not change as the price changes. So वो इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है. अब I will quickly take you to a particular chart of Nifty. Bear with me. Now this is Nifty chart on 5 minutes, and I have put all the lines. I like the solid lines. By default जो indicator मैंने use किया है, this is CPR by KGS. So by default इसकी कुछ format होगी, मैंने उसको change किया है. Let me not waste time there. Basically these red lines that you're seeing, these are the S1, S2, S3. Green अभी screen के ऊपर है, R2, R3. This one, what you see, the green line is R1 here. And these are the CPR. Now you can clearly see यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ओपन हुआ, इट ट्राइड फर्स्ट कैंडल के बाद ही ये नीचे आया, एंड देन इट वाज अराउंड सीपीआर. उस समय ये वैल्यू जोन पे था. एंड देन यू सी कि 11:20 के बाद प्राइस रिएक्ट किया
और यहाँ पे आपको एक ब्रेक डाउन मिल रहा है 1135 वाली जो कैंडल है, इसमें ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद ये देखिए नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रही है, और यहाँ पे उस दिन प्राइस ने रिएक्ट नहीं किया। नॉर्मली ये सारे लेवल्स पे प्राइस रिएक्ट करेगी, बट इस दिन बहुत आसानी से इसको तोड़ दिया, एंड फाइनली वेयर इट रिएक्टेड एट S2 लेवल। तो कहीं से भी प्राइस रिएक्ट कर सकता है, बट इसमें आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि प्राइस विल रिएक्ट एट वन ऑफ दीज लेवल्स, और हमने 11 डेटा पॉइंट्स लगाया है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है तो क्या करेंगे, जहां पे अगर ये जो हमारा प्राइस है, इफ दैट इज नियर एन इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, तो हम उस समय फ्रेश ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे? व्हाट इज लॉजिकल? लॉजिकली वी विल नॉट टेक अ फ्रेश ट्रेड, वी विल वेट फॉर दैट लेवल टू बी, आइदर इट विल रिवर्स फ्रॉम देयर और इट विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर, लेकिन हम वहां पे वेट करेंगे। और अगर हम ऑलरेडी ट्रेड पे हैं, इफ वी आर ऑलरेडी इन ट्रेड, देन वी आर गोइंग टू बुक पार्शियल प्रॉफिट, बिकॉज तब तक हमारा कुछ टारगेट मीट हो गया होगा। तो ये बहुत लॉजिकल, मैं आपको ये फॉर्मूला नहीं दे रहा हूँ कि अगर हमने CPR से शुरू किया, वहां से कैंडल गिरा, फिर हम S1 पे आ गए तो आधा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, S2 पे आ गए तो पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आई एम नॉट सेइंग दैट। लॉजिकली आप सोचिए, दीज आर द डेटा पॉइंट्स फ्रॉम वेयर प्राइस इज रिएक्टिंग। सो व्हेन द प्राइस इज रिएक्टिंग, it has not given the confirmation. Are we going to take a new trade? The answer is no. We will wait for confirmation before we take a new trade. But if we are already in trade and we know that we have reached a point where the price is going to react, then if I'm a cautious trader, I will book part of my profit if I'm in profit. As simple as that. And if the level at which it was reacting and there was a breakdown or breakout, and if that gets violated, then what I'm going to do? I'm going to take an SL. यहाँ पे मुझे लगा 1135 के कैंडल पे कि ये ब्रेक हो रहा है, लेकिन अगर ये रिवर्स मार देता और ये CPR के ऊपर बंद हो जाता तो मैं क्या करता? मैं SL लेके निकल जाता। काफी लॉजिकल है, क्योंकि हमने क्या लॉजिक लगाया था? कॉमन सेंस आप इस्तेमाल कीजिए। ये सारे 11 लेवल पे प्राइस रिएक्ट करेगा। प्राइस अगर उसके पास है तो आप इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेंगे जब तक कि आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता है। कंफर्मेशन मिलने के बाद आप ट्रेड में आ जाएंगे। अगला लेवल जो है वहां पे फिर से प्राइस के रिएक्ट करने के चांसेस हैं, तो आप कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे अगर आप प्रॉफिट में है। अगर रिवर्स कर गया तो जिस लेवल पे आपने ट्रेड लिया था आप अपना SL लेके निकल जाएंगे। करेक्ट? सो दैट इज अ वेरी कॉमन सेंसिकल अप्रोच। करेक्ट? अब हम थोड़ा इसमें और देखते हैं। ओके, so after talking that the price reacts from this level, what I want to say is the second practical lesson is that these don't change during trading hour. I have already talked to you. So जब intraday trade हम लेते हैं, so we put a 3-minute or a 5-minute or a 15-minute candle. Normally we put 3-minute or 5-minute candle. Then we look at a daily CPR. अगर हम swing trade ले रहे हैं तो हम hourly पे लेंगे, तो weekly CPR लगाते हैं। अगर हम positional trade ले रहे हैं तो हम daily time frame पे लेंगे, तो हम monthly CPR लगाते हैं। तो जो CPR का time frame रहता है वो दैट इज एट अ हायर लेवल देन जिस टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड कर रहे हैं। व्हाट दैट मीन्स इज दैट द लेवल्स डोंट कीप ऑन चेंजिंग। दिस इज लाइक द मेमोरी ऑफ द पास्ट लेवल्स। सो दैट्स क्लियर। सो दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। नाउ तीसरा चीज, आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, बहुत सारे जो हमारे यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो क्लासेस वगैरह लेते हैं, उन्होंने आपको कहा होगा कि नैरो CPR मीन्स ट्रेंडिंग डे, वाइड CPR मीन्स रेंज बाउंड डे। मैंने I asked many traders, I said yes, narrow CPR means trending most likely, right? Probability is high, nothing is certain. Wide CPR means range bound. But do you know why it happens? ऐसा क्यों होता है? नैरो CPR का मतलब ट्रेंडिंग क्यों होता है? वाइड CPR का मतलब रेंज बाउंड क्यों होता है? तो एक छोटा सा चीज है, मैं फॉर्मूला में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपको फॉर्मूला उसके लिए देखना पड़ेगा। अगर आपने फॉर्मूला देख लिया, टॉप पिवट रेंज और बॉटम पिवट का जो आपने फॉर्मूला देख लिया, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर पिछला दिन काफी स्मॉल रेंज में है तो अगले दिन का जो CPR बनेगा वो काफी नैरो हो जाएगा, क्योंकि जो CPR बन रहा है, सपोज वी आर ट्रेडिंग टुडे, सपोज हम 27 या 28 जनवरी को ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जो 27 की ट्रेडिंग हम कर रहे हैं और ये सारे लेवल्स हमने लगा रखे हैं अपने चार्ट पे, दोज लेवल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द डेटा ऑन 20 a day before, right? So if we are trading on 28th, it is derived from the data on 27th. So if this 27th is a range bound day, तो जो फॉर्मूला है CPR का, उसके हिसाब से जो CPR बनेगा, जो लाइन बनेगी 28th को, दैट विल बी अ नैरो लाइन। और अगर 2-3 दिन से रेंज बाउंड डे है तो वो काफी नैरो बन जाएगा, राइट? तो
आप इस स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, ये 3 लाइन दिख रही है, नैरो दिख रहा है, पर इतना नैरो नहीं है, कभी कभी और भी नैरो रहता है, क्योंकि इसके पहले वाला दिन जो कि रेंज बाउंड था, पर वो रेंज थोड़ी बड़ी थी। अगर वो रेंज और छोटी रहती तो ज्यादा नैरो रहता। तो अगर 2-3 दिन से एक रेंज बाउंड डे है तो काफी नैरो सीपीआर बन जाता है। खासकर अगर पिछला दिन काफी छोटे रेंज में ट्रेड हुआ है तो जो सीपीआर बनता है वो काफी नैरो हो जाता है। सो वी नो फ्रॉम ट्रेडिंग कि अगर वोलेटिलिटी कंप्रेशन हो रही है तो उसके बाद वो एक्सपैंड करती है, अगर एक्सपैंड हो रही है तो वो कंप्रेस करेगी। तो अगर पिछले दिन और पिछले कई दिनों तक काफी नैरो रेंज में काम हो रहा है तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि मार्केट उस रेंज से बाहर निकल के ट्रेंड करेगी। और उस दिन सीपीआर का फॉर्मूला ऐसा है कि वो सीपीआर नैरो होता है, इसीलिए नैरो सीपीआर ट्रेंडिंग होता है। और उसका जो रिवर्स है वो रेंज बाउंड होता है, कि अगर काफी ट्रेंडिंग डे होता है तो जो सीपीआर के फॉर्मूला से वो हमारा काफी वाइड सीपीआर बन जाता है। फॉर्मूला मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप गूगल कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उस मैथमेटिकल है, बिल्कुल अरिथमेटिक है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स भी नहीं है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर पहले रेंज बाउंड डे था तो ट्रेंडिंग डे होगा, पहले अगर ट्रेंडिंग कुछ दिन चला है तो वो रेंज बाउंड डे होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई नैरो सीपीआर इज अ ट्रेंडिंग डे और वाइड सीपीआर मींस रेंज बाउंड डे। करेक्ट। सो दिस इज अनदर थिंग, वो हम ट्रेड करते हैं पर हमें पता नहीं रहता है, और हम बस एक फॉर्मूला इसको मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। स्कूल से हम निकल गए, अब तो हम ट्रेड कर रहे हैं, अब हमें रट्टा नहीं मारना है, राइट, हमें मगअप नहीं करना है चीजें, हमें समझना है कि ऐसा होता क्यों है। तो वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरा कॉमन सेंसिकल अप्रोच क्या है, कि जो सीपीआर है दैट इज अ फेयर वैल्यू जोन। अगर प्राइस उसके आसपास है, उसके बीच में है, तो प्राइस एक बैलेंस में है। लेकिन अगर सीपीआर के ऊपर है तो बुलिश जोन है, सीपीआर के नीचे है तो बेयरिश जोन है। इसलिए प्राइस कहां पे ओपन हो रहा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सीपीआर के ऊपर खुले हैं और हमारा प्राइस कंटिन्यू कर रहा है, उसका मतलब वो दिन बुलिश है। अगर हम सीपीआर के नीचे खुले हैं और प्राइस कंटिन्यू कर रहा है तो बेयरिश है। और कभी कभी अगर रिवर्सल आ गया तो वो उस दिन वो चेंज हो रहा है। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब हमें देखना है कि एक चीज जो मैं आपको चौथी चीज बता रहा हूं, तो ये अभी तक मैंने आपको 3 चीजें बता दी, राइट। मैंने बताया कि सीपीआर और उसके जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्रीवियस डे हाई लो है, ये इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स है जहां से प्राइस रिएक्ट कर रहा है। तो आपको देखना है कि प्राइस कैसे रिएक्ट करना है, उसके बाद अपना ट्रेड डिसाइड करना है। दूसरी चीज आपको समझना है कि नैरो सीपीआर नैरो इसलिए होता है क्योंकि उसके पहले रेंज बाउंड एक्शन रहता है, तो ट्रेंडिंग होने के चांस ज्यादा है। वाइट सीपीआर इसलिए होता है कि उसके पहले वो ट्रेंडिंग रहता है, तो रेंज बाउंड होने के चांसेस ज्यादा है। तीसरा, सीपीआर वैल्यू जोन है, उसके ऊपर खुल रहा है तो बुलिश होने के चांसेस ज्यादा है, उसके नीचे खुल रहा है तो बेयरिश होने के ज्यादा चांसेस है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सीपीआर बेयरिश बेयरिश या बुलिश जोन में है, लेकिन वो एक दायरे में रह जाता है, एक रेंज में रह जाता है। तो इसका मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक पिंजरे के जैसा, एक केज के जैसा है। अब हमने 11 डेटा लेवल्स की बात की। कभी कभी आप देखेंगे कि प्रीवियस डे लो हाई वो किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास रहते हैं, तो उन दोनों को आप एक जैसा ही मान सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है, कोई भी 2 लेवल आप ले लीजिए, कोई भी 2 लेवल ले लीजिए। अगर सीपीआर का जो टॉप लाइन है उससे आपको R1 प्राइस मान लिया, तो R1 और सीपीआर का हाई वो एक जोन हो गया, R1 एंड R2 दूसरा हो गया, R2 एंड R3 तीसरा हो गया। उसी तरह से नीचे, राइट, सीपीआर से S1, S1 S2, S2 से S3। अगर प्राइस जिस दिन ये जो एक जोन है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो उसे मैं कहता हूं कि इट इज इनसाइड द केज, वो पिंजरे में बंद है। और जब तक प्राइस पिंजरे में बंद है, इसका मतलब कि साइडवेज डेज चल रहा है। जब वो पिंजरे से बाहर निकलेगा तब वो भागेगा। जैसे कि एक बर्ड है जो कि एक पिंजरे में कैद रहता है, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वो तेजी से उड़ने की कोशिश करता है। तो प्राइस एक्शन भी वैसे ही है। अगर वो एक पिंजरे में कैद है, एक रेंज में चल रहा है, और रेंज मैंने आपको समझा दिया, रेंज से जैसे वो बाहर निकलेगा तो वो एक फ्री बर्ड के जैसा उड़ने की कोशिश करेगा, और उसी समय आपको अपना ट्रेड डिसाइड करना पड़ेगा। और जब वो रेंज में, जब पिंजरे में बंद है, तो आपका जो ट्रेड है वो एक अलग होगा। तो आप ट्रेड कैसे लेंगे, ये तो समझ में आ गई आपको। मैंने सारा कॉमन सेंसिकल चीजें बता दी कि अगर 2 रेंज के बीच में है, R1 और R2 के बीच में, या सीपीआर और R1 के बीच में, या सीपीआर और S1 के बीच में, S1 और S2 के बीच में, उसी के बीच में प्राइस चल रहा है, राइट, तो फिर रेंज बाउंड है। और अगर आप फिर आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे, तो लेट मी कम टू द नेक्स्ट वन।
तो यहाँ पे एक मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ जो कि बहुत कम लोग बात करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं सीपीआर को आईवी या विक्स के साथ कंबाइन करता हूँ। यहाँ पे मैं इंटरचेंजेबली बोल रहा हूँ क्योंकि जो विक्स की चार्ट है वो हमें आसानी से मिल जाती है, आईवी के चार्ट के लिए आपको एक दो टूल देखने पड़ते हैं। बट बेसिकली आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो वोलेटिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें प्राइस एक्शन के साथ वोलेटिलिटी को कंबाइन करना पड़ता है। प्राइस एक्शन हमें सीपीआर और जितने मैंने 11 लेवल से बताए आपको पता चल गया, और आप बहुत ही कॉमन से, आप कुछ भी इसमें मेमोराइज, मैंने आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा है कि आप ये रूल लिख लो, इसके ओपनिंग यहाँ पे होती है तो ये 3 रूल है और रिवर्स होता है तो 3 रूल है, कोई कुछ भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए। तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि अगर वोलेटिलिटी गिर रही है तो वो किस दिन किसके लिए अच्छा रहेगा? ऑप्शन सेलर के लिए। वोलेटिलिटी बढ़ रही है तो वो दिन किसके लिए अच्छा रहेगा? ऑप्शन बायर के लिए अच्छा रहेगा। तो जो शॉर्ट वॉल स्ट्रैटेजी है, जब आईवी कम हो रहा है उसके लिए हम करेंगे। लॉन्ग वॉल, जब आईवी बढ़ रहा है उस दिन हम करेंगे। तो अगर हम प्राइस एक्शन जो कि सीपीआर से पता चल रहा है उसके उसको आईवी के साथ वोलेटिलिटी के साथ कंबाइन कर देते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा एज मिल जाता है। तो हम उस अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो अब 4 पॉसिबिलिटी मैंने आपको यहाँ पे लिखी है कि प्राइस रेंज में है तो प्राइस या तो ट्रेंड कर रहा है या प्राइस रेंज में है। मैंने कहा कि जब पिंजरे में बंद है तो प्राइस रेंज में, पिंजरे के बाहर निकला तो ट्रेंड कर रहा है। तो जब प्राइस एक रेंज में है या प्राइस जो है केज में बंद है, इट इज अंडर केज एंड आईवी इज फॉलिंग, then that is the best day for an option seller who works on non-directional strategy because both the options will melt or decay. So that is the day when theta gainers make merry. लगता है कि थीटा तो बहुत बड़ा एज है उस दिन। अब दूसरा ये हो सकता है प्राइस तो रेंज में है जी लेकिन आईवी बढ़ रहा है। अब वहां पे आईवी अगर बढ़ रहा है और प्राइस रेंज में है तो हमें एज एन ऑप्शन सेलर वी शुड बिकम कॉशियस कि थीटा गेनर्स जो हैं उन्हें कॉशियस हो जाना चाहिए कि कोई स्टॉर्म आने वाला है, क्योंकि आईवी बढ़ रहा है तो कुछ तो रीजन है कि आईवी बढ़ रहा है। अब दूसरा आप सिचुएशन लीजिए कि प्राइस ट्रेंड कर रहा है, आईवी गिर रहा है, तो हमें क्या करना है? हम ऑप्शन सेल करना है, लेकिन चूंकि प्राइस ट्रेंड कर रहा है तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन हमें एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। हमें डायरेक्शनल ऑप्शन सेल करना पड़ेगा। तो अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो हम कॉल ऑप्शन बेच देंगे, प्राइस ऊपर जा रहा है तो हम पुट ऑप्शन बेच देंगे। लेकिन आपको ऑप्शन बाइंग में हो सकता है कि उतना फायदा ना हो, पर जिस दिन आईवी बढ़ रहा है और प्राइस भी ट्रेंड कर रहा है उस दिन तो बल्ले बल्ले हो गई ऑप्शन बायर्स की। उस दिन तो ऑप्शन सेलर कुछ कर ही नहीं सकता है, भूल जाता है कि उसका क्या एज है, क्या है, कुछ नहीं समझ में आता है। और उस दिन आपको ऑप्शन बाइंग करनी है। तो एज अ ट्रेडर मैं नहीं कहता हूं कि ऑप्शन बाइंग में एज है या ऑप्शन सेलिंग में एज है। एज है अगर आप वोलेटिलिटी को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके समझ सकते हो तो वो एज है, और उसकी बेसिस पे आप ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी बनाते हो, वो आपका एज है। तो अगर प्राइस ट्रेंड कर रहा है और आईवी बढ़ रही है तो आपको डायरेक्शनल ऑप्शन बाइंग करनी पड़ेगी। प्राइस ट्रेंड कर रहा है, आईवी घट रहा है, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करनी पड़ेगी। प्राइस रेंज में है, आईवी घट रहा है, बिल्कुल काफी दिनों वैसा होगा, आप ऑप्शन सेल करके नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैडल स्ट्रैंगल जो भी आपको कंफर्टेबल है आप वो सेल करके बैठ जाइए। और अगर आईवी बढ़ रहा है और प्राइस रेंज में है तो मैं तो कहूंगा कि ट्रेड ही मत लीजिए। आप ऑप्शन बायर हो या सेलर हो, ट्रेड मत लीजिए उस दिन, देखिए कि इसके बाद क्या होता है। सो दैट इज माई थिंग। एक हल्का सा मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। आई नो कि हमें 17-18 मिनट लग गए हैं, तो मैं एक हल्का सा आपको चार्ट दिखा रहा हूँ और उसके बाद हम ये वीडियो बंद कर देंगे। तो मैं आपको एक रैंडम मैंने 14 तारीख का लिया था क्योंकि उस दिन मुझे मैं एक दूसरे चार्ट पे जाता हूँ जिसमें मैंने आई लगा रखा है। तो आप ऊपर देखिए कि मैंने सारे सीपीआर के लेवल्स लगा रखे हैं, एंड बिलो दैट दिस इज द इंडिया विक्स चार्ट। And this India VIX, when it is red, that means कि that day the VIX is falling, and green means VIX is increasing. So I'll just take just as an example, and आप ये लगा के देख सकते हैं। तो आप देखिए कि 14 जनवरी को अच्छा खासा काइंड ऑफ रेंज था, बट सुबह से जो विक्स था, विक्स वाज फॉलिंग, और विक्स स्टार्टेड इंक्रीजिंग ओनली आफ्टर 135, मतलब 140 के जो कैंडल है। तो फिर हमने देखा कि विक्स बढ़ रहा है। तो हम देखते हैं कि उस दिन अगर हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और मैंने जो आपको जैसा बताया है ज्यादातर समय एक आपको रेंज में दिख रहा है, राइट? ये प्राइस नीचे था, ऊपर गया पर बहुत ऊपर नहीं जा पाया, फिर नीचे आ गया। तो ये एक रेंज बाउंड एक्शन चल रहा है और विक्स भी गिर रहा है।
इस दिन मैं आपको एल्गो टेस्ट्स के माध्यम से दिखा रहा हूँ। एक सिमुलेटर मैं जस्ट यूज करूंगा एल्गो टेस्ट का, राइट। और मैं आपको सिमुलेटर के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि उस दिन क्या होगा। जस्ट 1 सेकेंड, मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिए। तो मैं सिमुलेटर पे जा रहा हूँ। ये एल्गो टेस्ट मैं यूज करता हूँ। एल्गो टेस्ट का सिमुलेटर है, 14 जनवरी का दिन है। और मैंने आपको 14 जनवरी को दिखाया कि रेंज था और विक्स गिर रहा था। तो अगर उस दिन हम एक स्ट्रैडल भेज देते, आप स्ट्रैंगल कर सकते हैं, अगर हम स्ट्रैंगल भेज देते और 140 के बाद जो है विक्स बढ़ रहा था, तो लेट्स सी कि क्या हुआ 140 तक। तो हमने 916 को हमने जाके सेल कर दिया और अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम अपने ट्रेड में। आप देख रहे हैं कि ग्रीन ही चल रहा है। 1:16 तक हम पहुंच गए हैं और हमने देखा था कि 1:35 के बाद हमारा विक्स गिरने लगा था, राइट। तो आप देखिए 1:36 में हमें एक लॉट पे 1800 का प्रॉफिट है, राइट। हमने एक लॉट पे, आप देखिए यहाँ पे पुट ने आपको करीब 2000 रुपए का 1992 का प्रॉफिट दिया है और कॉल ने भी आपको बस 200 रुपए का लॉस दिया है। सो इट वॉज अ परफेक्ट डे। हालांकि इसके बाद हमने देखा कि विक्स बढ़ रहा है, तो आइडियली हमें यहाँ इस ट्रेड से निकल जाना चाहिए 140 को, क्योंकि विक्स बढ़ने लगा है। तो मैं दिखा लेता हूं कि अगर विक्स बढ़ने के बाद भी हम इस पे पड़े रहते, अभी तक हमारा 1810 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। अगर हम इसके बाद कंटिन्यू करते उस दिन तो ओवरऑल हमें प्रॉफिट होता है, लेकिन आप देख रहे हैं प्रॉफिट हमारा 1890 और 1900 से कम होकर 1134 आ चुका है। तो प्रॉफिटेबल था क्योंकि एक लंबे समय तक विक्स वॉज फॉलिंग और रेंज बाउंड डे था। तो मैंने जो आपको बताया स्ट्रैटेजी चल गई है। तो बस इतना ही आपसे शेयर करना चाहता हूं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप रूल्स मेमोराइज करने की जगह पे सीपीआर और उसके जो एसोसिएटेड सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो है, look at it as a level from where price reacts. Since price reacts from there, if you're not in trade, then wait for a confirmation before you make a trade. If you're already in trade, then use that opportunity to book partial profit and full profit. That is point number one. Second thing is, if a few days have been range bound, then chances of trending day goes up. If they have been trending day, chances of range bound days goes up, and that gets reflected in the narrow CPR, because narrow CPR becomes narrow CPR because the previous day has been a range bound, and wide CPR becomes wide because previous day has been trending, correct? So that's the second thing. The third thing which I am saying is that you look at for the range or the direction. So if it is above CPR, it's a bullish zone. Below CPR is bearish zone. And if any two level out of the 11 data points I'm talking about, two adjacent level, if the price action is within that two subsequent or the adjacent levels, then it is a range bound. कभी-कभी क्या होता है कि price will open off above R2, but R2 से open होने के बाद वो R3 के नीचे ही सारा दिन खत्म हो जाएगा, रिवर्स भी नहीं मारेगा उस दिन। इनिशियली वो विक्स बढ़ा रहेगा, बट उसके बाद आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद प्राइस स्टेबल हो रहा है और विक्स गिर रहा है। एनीवे, विक्स पे मैं फाइनली आता हूं। और फाइनल पॉइंट मेरा ये था कि अगर आप प्राइस एक्शन को वोलेटिलिटी के साथ कंबाइन करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन सा ट्रेड लेना है। विद दैट आई वुड लाइक टू क्लोज द वीडियो। थैंक यू सो मच एंड ऑल ऑफ यू हैव अ great weekend and great trading day, and trade carefully. Budget is coming, so thank you so much.